Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would really thank this audience and this place for giving me this opportunity to represent you, to help you out in the counseling session of LawSet. And exclusively, I would like to thank Alif Foundation and Khan's Advocates for conducting such workshops which will help students to enlighten the procedure of admission in law courses 2026. Now we are here. Today is 26th of July 2026, and I hope everybody over here has already cleared the LawSet examination, and they are now very much curious to know the procedure for admission in law courses in various colleges throughout Telangana. Now we will see what is the procedure for web counseling and admission process. See, I have mentioned two words over here, CQ and MQ. Anybody knows what is CQ and MQ? Yeah. CQ stands for convener quota and MQ stands for management quota. So what happens is, in a law department, in 3YDC and 5YDC, each section is of 60. So 60 into multiple sections depending on the strength of the college. 60 into 4, 60 into 5, 60 into 6, that is the maximum any law college have. That is 360 seats. So these seats are divided into two parts. One is convener quota and one is management quota. The convener quota seats are 80%. And the management quota seats are 20%. So who decides admission to be given in convener quota and who decides the management quota? Anybody knows that? Management quota must be decided by the management of the college. Yes. You are absolutely right. These 20% seats are in the hands of the college management. As per the merit, they can choose the candidate to whom the seat to be given. Okay. Now we are talking about these 80% seats. This comes under convener quota. All the convener quota seats come through web counseling option, which is conducted by Telangana LawSet. So how this procedure is done? So whoever students have qualified the TG LawSet 3YDC and 5YDC, for them the notification for web counseling is already been released. So the procedure is completely online. The admission process for 3YDC, 5YDC, LLB and LLM is completely online, wherein you have to browse in your TG LawSet website, download your rank card, keep your hall ticket ready. With that one, you need to pay a processing fees to TG LawSet for counseling. Once you pay the processing fees, the next step goes is uploading of documents. So what documents you need to upload? So I'll give you an explainer of the documents that you need to upload. यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने मिस्टेक करते डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में. डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आपका कितना बेहतर रैंक आएगा, चाहे आप टॉप रैंकर्स भी होंगे, आप सीट मिलने के चांसेस मिस कर रहे हैं. आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना है. इसमें जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका रैंक कार्ड, टीजी लॉसेट का आपका रैंक कार्ड जो मिला है. सेकेंड डॉक्यूमेंट है आपका एसएससी का कॉपी. ये सब स्कैन डॉक्यूमेंट्स है, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट किसी को सबमिट नहीं करना है, सब कुछ स्कैन डॉक्यूमेंट्स देना है. थर्ड डॉक्यूमेंट है इंटरमीडिएट और फोर्थ डॉक्यूमेंट है ग्रेजुएशन फॉर 3YDC. फॉर 5YDC के लिए इंटरमीडिएट इज इनफ. इसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स. ये डॉक्यूमेंट्स तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स है, ऑलमोस्ट सभी के पास रहते हैं और सब लोग अपना प्रॉपरली अपलोड करते हैं. ये डॉक्यूमेंट में मोस्टली इशू ही नहीं आता है. ये डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो आप एलिजिबल ही नहीं रहेंगे. ये डॉक्यूमेंट के बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें स्टूडेंट्स बहुत सारे मिस्टेक करते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो है स्टडी सर्टिफिकेट, जिनको हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी कहते हैं.
जो आपको स्कूल से मिलेगा, आपके कॉलेज से मिलेगा, जहाँ से भी आपने स्टडी किया है वहाँ से मिलेगा। और ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम क्लास 5th ऑनवर्ड्स चाहिए आपको। क्लास 5 से क्लास 10th, इंटरमीडिएट के 2 साल और ग्रेजुएशन के 3 साल, ये पूरे आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स रेडी रखना है। अगर किसी कैंडिडेट ने डिस्टेंस में किया है तो उनको उनकी माइग्रेशन की कॉपी रेडी रखना है। ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट की इतनी रिक्वायरमेंट क्यों है? बोनाफाइड सर्टिफिकेट तो आपने स्कूल में पढ़ा, स्कूल में बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशू हो गया। ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट ये प्रूव करता है कि यू आर अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट, क्योंकि ये 80% सीट्स आर कंप्लीटली रिजर्व फॉर तेलंगाना स्टूडेंट्स ओनली, एक्सक्लूसिव फॉर तेलंगाना स्टूडेंट्स। इसमें नॉन तेलंगाना स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। तो उसको प्रूफ करने के लिए आपको अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट सबमिट करना ही है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इनकेस किसी स्टूडेंट ने प्राइवेट स्टडी की है या किसी स्टूडेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पेरेंट्स का जॉब है तो रोटेशनल जॉब है, उस कंडीशन में उनको अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट 7 years ऑफ रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय एमआरओ सबमिट करना है। इसके बाद का जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो है, अगर आप लोग एसटी, एससी या बीसी में से अगर आप ये 3 कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो आपको अपना एसटी, एससी और बीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये अपलोड करने का रीज़न ये है कि एसटी, एससी एंड बीसी के लिए रिजर्व सीट्स होते हैं हर कॉलेज में। अब अगर फॉर एग्जांपल आप बीसी से है या ओसी है, आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, कौन सा है? शेख है, बीसीई में, बीसी। तो आप क्योंकि बीसीई से बिलोंग करते हैं तो बीसीई का हर कॉलेज में 4% का एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन है। आप तेलंगाना के किसी भी कॉलेज में जाएंगे 4% का एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन है फॉर बीसीई। वैसे बीसीबी का रिजर्वेशन है, बीसीए का रिजर्वेशन है, बीसीडी का रिजर्वेशन है, एसटी और एससी का रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए आपको अपना कैस्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसमें कैस्ट सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय एमआरओ एंड ऑन और आफ्टर 2014। जो कैस्ट सर्टिफिकेट 2014 से पहले का है वो एलिजिबल नहीं है। तेलंगाना गवर्नमेंट का इशू 2014 के बाद का ही कैस्ट सर्टिफिकेट एलिजिबल है। नेक्स्ट, अब ये हो गया आपका कैस्ट सर्टिफिकेट। कैस्ट के बाद नेक्स्ट है सर्टिफिकेट जो रहेगा, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल ओसी में आ रहे हैं जिनको कोई रिजर्वेशन नहीं है, अगर वो लोग उनकी पेरेंटल इनकम लेस देन 8 lakhs पर ईयर है तो दे कैन क्लेम रिजर्वेशन इन ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसके लिए नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में 10% सीट्स रिजर्व्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस सीट्स, ये सीट्स के अलावा एडिशनल 10% सीट्स है फॉर ईडब्ल्यूएस। जितने अपर कास्ट है जो एसटी, एससी, बीसी रिजर्वेशन में नहीं आते और इनकी पेरेंटल इनकम 8 lakhs के बिलो है, वो लोग बीसी ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल है। ये भी ईडब्ल्यूएस का प्रोसीजर सेम है। आपको लेटेस्ट करंट ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एमआरओ से शो करवाना है और ये अपलोड करिए। तो इसमें आपको किसी को अगर यहाँ रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है एसटी, एससी एंड बीसी, तो यहाँ पर रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हैं आप लोग ईडब्ल्यूएस में। ये हो गया रिजर्वेशन का। नेक्स्ट चीज है फीस रिम्बर्समेंट का। क्योंकि आप लोग कन्वीनर से सीट जा रहे हैं तो ये स्टूडेंट फीस रिम्बर्समेंट के लिए एलिजिबल है। कंडीशन इज दे शुड बिलोंग्स टू एसटी, एससी, बीसी एंड minorities. All minorities are eligible for fees reimbursement with a condition that their parental income should be less than 2 lakhs per year. एक चीज इसमें नोट करिए कि सिर्फ बीसी वाले एलिजिबल नहीं है, सारे माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जैन्स, सिख्स, एवरी माइनॉरिटी, मुस्लिम्स में सैयद भी है, खान भी है, शेख भी है, सब एलिजिबल है फीस रिम्बर्समेंट के लिए। कंडीशन एक ही है कि आपकी पेरेंटल इनकम लेस देन 2 लाख पर ईयर होना, और इसके लिए आपको एमआरओ से एक सर्टिफिकेट इशू करवाना है, इनकम सर्टिफिकेट, लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट है ना, ऑन एंड आफ्टर 1 जून 2026। आप ये सर्टिफिकेट एमआरओ से इशू करवाइए। एमआरओ से इशू करवा के आप जब ये सर्टिफिकेट आप सबमिट करेंगे
तो आप लोग फीस रिम्बर्समेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसा आप फीस रिम्बर्समेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपका अलॉटमेंट लेटर में 0 फीस मेंशन हो जाएगा। मीन्स यू नीड नॉट टू पे अ सिंगल पेनी, every fees of yours will be covered by the government. Okay? तो ये सर्टिफिकेट्स अगर किसी के पास नहीं है तो अभी भी ऑब्टेन कर लीजिए, एमआरओ से ऑब्टेन करिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आपको सीट ऑब्टेन करने के लिए भी हेल्प करेंगे, आपका फाइनेंशियल बर्डन भी ईज आउट करेंगे। अगर कोई एलिजिबल नहीं है इनकम सर्टिफिकेट के लिए, जिनकी पेरेंटल इनकम अबाउट 2 लाख है, उनको ये एलिजिबल ही नहीं है। नेक्स्ट थिंग, एज क्राइटेरिया है इसमें इनकम सर्टिफिकेट के लिए। इनकम के लिए एज क्राइटेरिया है 29 ईयर्स फॉर ST, SC, ST एंड BC फॉर इंटरमीडिएट, आफ्टर इंटरमीडिएट 5IDC, 33 ईयर्स फॉर ST, SC एंड BC फॉर 3YDC, और 24 years for OC, minority and EWS. 29 years for OC, minority, EWS for 3YDC. इसमें एक एज क्राइटेरिया भी रहेगा। आई गेस मोस्टली आप लोग सब मोस्टली वही एज के अंडर फॉलो रहे, ठीक है। तो जो भी 29 या 24 के अंदर इंटरमीडिएट वाले फॉल हो रहे हैं उन लोग एलिजिबल है, और जो भी 29 या 33 के अंदर फॉल हो रहे हैं उन लोग भी इनकम सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल है, और लोग फीस रिम्बर्समेंट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट, मोस्टली आप लोगों ने शायद मालूम कर लिया होगा तेलंगाना में कॉलेजेस कितने हैं। ऑलमोस्ट सबको एक ब्रीफ आइडिया तो हो गया होगा। वेरी गुड, इतने कॉलेजेस है। इसमें आप लोगों ने अपना डिजायर्ड कॉलेज शॉर्टलिस्ट भी कर लिया होगा मोस्टली। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट अगर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स है और ये सोच रहे हैं कि हमको माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया है। आप लोग ऑटोमेटिकली माइनॉरिटी कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, क्योंकि माइनॉरिटी कॉलेज जिस भी माइनॉरिटी को बिलोंग करता है उसके लिए आपको अपना एक डॉक्यूमेंट देना होगा कि यू बिलोंग टू दैट माइनॉरिटी। फॉर एग्जांपल, तेलंगाना में कुछ मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, और वो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा कि यू बिलोंग टू मुस्लिम माइनॉरिटी। अब उसके लिए आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है? इसके लिए जो डॉक्यूमेंट, प्राइमरी डॉक्यूमेंट जो कन्वीनर लॉ सेट के पास से इंस्ट्रक्शंस में है कि आपको अपने टीसी की जीरोक्स सबमिट करना है, 10th की। याद रखिए, 10th के टीसी की जीरोक्स। इसके अलावा आप इंटर की टीसी सबमिट करेंगे, ग्रेजुएशन की टीसी सबमिट करेंगे, वो एलिजिबल नहीं रहेगा। 10th की टीसी में आपका जहाँ नेशनैलिटी मेंशन रहती है, नेशनैलिटी के इमीडिएट कॉलम में आपकी रिलीजन मेंशन रहेगा। अगर किसी के पास 10th की टीसी की जीरोक्स नहीं है, वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? कौन सा सर्टिफिकेट? आप अपनी रिस्पेक्टिव स्कूल्स को जाइए जहाँ से आपने एसएससी कंप्लीट किया है, वो स्कूल्स में जाके अपने प्रिंसिपल से मिलिए और उनको बोलिए एक माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। वो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट भी एलिजिबल रहेगा। बाय एनी चांस आप स्कूल नहीं जा सके, आपका स्कूल क्लोज हो गया या कोई और हर्डल आ रहा है, तब क्या करेंगे आप? एफिडेविट तो सेल्फ स्वेयरिंग है। आपको एक अथॉरिटी से चाहिए लेटर कि आप माइनॉरिटी से हैं, जब क्या करेंगे? कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट के लिए है, रिलीजन के लिए नहीं है। ये एक्सक्लूसिव रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन है। बिल्कुल सही है। उस सूरत में आप मस्जिद के लेटरेट पे लिखा के लेके जाइए, अपनी मोहल्ले की मस्जिद के लेटरेट पे लिखा के लेके जाइए कि आप फलाना फलाना है और आप फलाना मज़हब से वास्ता रखते हैं। तो एक ये भी ऑप्शन है कि आप मस्जिद का लेटर लेके जाएंगे, लेकिन याद रखिए मस्जिद का लेटर इंग्लिश में होना, उर्दू में नहीं रहना, ठीक है।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट के बेस पे आपको माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, आपसे ये अगर डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो आप माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि आप उस टाइम पे माइनॉरिटी काउंट नहीं होंगे। आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। जनरल कैटेगरी में जितने तेलंगाना में कॉलेजेस है, उसमें आप या तो ओसी में सीट क्लेम कर सकते हैं या बीसीई में सीट क्लेम कर सकते हैं। तो ये याद रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले काफ़ी सालों से ये एक मिस्टेक करते हैं, या तो उनके पास उनकी एसएससी की जीरोक्स नहीं रहती, या फिर उनके पास उनके स्कूल से रास्ता नहीं रहता, स्कूल उठ गया, जो भी रीज़न है, या फिर मालूम नहीं है प्रोसीजर करना कैसे है। तो ये प्रोसीजर के लिए डॉक्यूमेंट इंटैक्ट रखिए। ये डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपको इंशाल्लाह माइनॉरिटी कॉलेजेस में, अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं माइनॉरिटी कॉलेज में लेना, तो ये ऑप्शन से आपको मिल जाता। अब इसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो जनरल डॉक्यूमेंट है। सबको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है और अपनी लास्ट टीसी अपलोड करना है, चाहे वो आपकी इंटरमीडिएट की टीसी हो, ग्रेजुएशन की टीसी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की टीसी हो, ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो ये सारे जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन आएगा आप ही के लॉगिन पे कि डॉक्यूमेंट्स आर सक्सेसफुली अपलोडेड। जैसा आपको कंफर्मेशन आएगा, उसके बाद उन लोग डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद अगर इसमें कोई डेफिशिएंसी होती है तो वहीं पे आपको डेफिशिएंसी मेंशन होगी। अब वो डेफिशिएंसी को आपको फुलफिल कैसा करना है, इनकम से अगर आपको डेफिशिएंसी आई तो डेफिशिएंसी में करना क्या है। डेफिशिएंसी में ये होगा कि आपके लॉगिन पे ही एक ईमेल ऑप्शन होगा। आपके पर्सनल ईमेल आईडी से ईमेल नहीं करना है, आपके लॉगिन में ही एक ईमेल ऑप्शन होगा, उसी में ईमेल करके आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। वहाँ पर जो भी आपको डेफिशिएंसी आई, किसी ने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, किसी ने ग्रेजुएशन का कंसोलिडेट मेमो अपलोड नहीं किया, किसी ने 10th का कॉपी अपलोड नहीं किया, किसी ने इंटर का कॉपी अपलोड नहीं किया, या प्रॉपरली अपलोड नहीं किया, मेक इट श्योर कि आप जो कॉपी अपलोड कर रहे हैं वो प्रॉपरली स्कैन्ड हो, प्रॉपरली स्कैन्ड एंड विजिबल हो। फोन से पिक्चर खींच के अपलोड करना अवॉइड करिए। फोन से खींची हुई पिक्चर की क्लैरिटी नहीं होती है जब अपलोड होता है, तो अवॉइड करिए फोन से पिक्चर क्लिक करना। आप अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करिए, स्कैन करके सबमिट करिए। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें यह है कि आप लोग क्योंकि ऑलरेडी लॉ सेट क्वालिफाइड है, तो मुझे शायद उम्मीद है कि आपको सबको पता है कि एडमिशन के लिए मिनिमम एक परसेंटेज क्राइटेरिया होता है। वो क्या है, आपको आइडिया है? चाहे वो 3/DC हो चाहे 5/DC हो, मिनिमम मार्क्स आपके 45% रहना ही है। आप 45% से बिलो है तो आप एलिजिबल नहीं है, ना कन्वीनर कोटा में ना मैनेजमेंट कोटा में। तो ये चीज़ आप जहन में रख लीजिए। अगर किसी के इंटरमीडिएट में 1000 में से 450 से कम है, 446 इज ऑल्सो एलिजिबल, क्योंकि राउंड ऑफ में वो 45% आ जाता है। 446 से ऊपर अगर मार्क्स है तो ही एलिजिबल है आप। 446 से कम है, 445 भी रहे तो एलिजिबल नहीं है इंटरमीडिएट में। वो लोग अभी कोई और स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर लीजिए, फिर लॉ में आइए। सेम वैसे ही रहेगा। अगर 3/DC में ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स 45% से बिलो है तो आप लोग लॉ के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको अगर लॉ करना है तो उसके लिए फिर एक सेकेंडरी रास्ता है कि आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट में मास्टर्स करना होगा। मास्टर्स में आपके मार्क्स अबाव 45% रहना तो ही आप एलिजिबल रहेंगे। तो ये चीज़ एक जहन में रखिए कि आपका परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। 45 एंड आई होप सबके 45 के ऊपर ही होंगे, और मेरे हिसाब से तो सब आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, तो 80-90% उम्मीद रख रहा हूँ मैं। सो ये एक चीज़ जहन में रखिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट फेज आएगा आपका कि आपके डॉक्यूमेंट सारे एक्सेप्ट हो गए,
आपको एलिजिबिलिटी आ गई, आपके पास एक कंफर्मेशन आएगा कि आपका परसेंटेज एलिजिबल है, आपके मार्क्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के मार्क्स एलिजिबल है, आपका लोकल स्टेटस एलिजिबल है, आपका इनकम स्टेटस एलिजिबल है, आपका कैश स्टेटस एलिजिबल है, ये आपको कंफर्मेशन आ जाएगा। जैसा आपको कंफर्मेशन आ जाएगा, आपके डिजायर्ड रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल हो गई, उसके बाद आपके साथ कैटेगरीज लग जाएंगे, जैसा इनकम के लिए एलिजिबल यस और नो, फीस रिम्बर्समेंट के लिए, माइनॉरिटी एलिजिबल यस और नो, रिजर्वेशन अवेलेबल ST SC BC यस और नो, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड यस और नो आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हो होता है आपका सेकंड फेज ऑफ काउंसलिंग। सेकंड फेज मतलब सेकंड राउंड नहीं, इसी में सेकंड स्टेप होता है। वो सेकंड स्टेप होगा आपको कॉलेजेस चूज करने का। जी हाँ, उसके बाद कॉलेजेस चूज करने के लिए उसको बोलते हैं वेब ऑप्शंस। अब वेब ऑप्शंस आप चूज करते हो, बहुत स्मार्टली चूज करना है आपको वेब ऑप्शंस। सारा गेम यहीं पे वेब ऑप्शंस चूज करने में। वेब ऑप्शंस आपका प्रेफरेंस रहेगा कि आप सबसे पहले कॉलेज कौन सा प्रेफर करना चाह रहे हैं, इररेस्पेक्टिव रैंक, कुछ भी रैंक रहने दीजिए, आपका टॉप 100 में लीजिए, लास्ट 100 में रहने दीजिए। आपका प्राइमरी ये रहेगा कि आप अपना कॉलेज कौन सा चूज करना चाह रहे हैं, उसकी एक शॉर्टलिस्ट बनाइए। अनलिमिटेड ऑप्शन से कोई लिमिट नहीं ऑप्शन देने में। आप एक भी ऑप्शन दे सकते, 10 ऑप्शन दे सकते, 50 ऑप्शन दे सकते, जितने अवेलेबल है पूरे ऑप्शन दे सकते। तो ये जहन में रखिए बात कि इसकी कोई लिमिट नहीं ऑप्शंस चूज करने के। जितना ऊंचा आपका रैंक है उतने ज़्यादा ऑप्शंस देना आपके लिए बेहतर है। जितना आपका रैंक शॉर्ट है, जितना आपका रैंक बेहतर रैंक है, उतने आप लिमिटेड ऑप्शंस भी देंगे तो आपको सीट मिलने के चांसेस है। लेकिन अपने प्रेफरेंसेस रखिए। प्रेफरेंसेस आपके प्रिफर्ड कॉलेजेस, आप जो भी देख रहे हैं प्रिफर्ड कॉलेज, आप ट्रैवल डिस्टेंस के हिसाब से देखना चाह रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हिसाब से देखना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस प्रेफर करना चाह रहे हैं, अप टू यू। एक चीज जहन में रखिए, सारे प्राइवेट कॉलेजेस एक ही है। सारे प्राइवेट कॉलेजेस एक ही है, ये चीज जहन में रखिए। ऐसा नहीं है कोई एक कॉलेज बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, दूसरा कॉलेज बिल्कुल लो लेवल, ऐसा नहीं है। सारे प्राइवेट कॉलेजेस एक ही है। कोई 19 है तो कोई 20 है तो कोई 21 है, इतना ही फर्क है बस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने ऑप्शंस चूज करते खुद बहुत वाइजली, बहुत स्मार्टली चूज करना है। आप अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर में कॉलेज के नाम प्रेफर करके डालेंगे तो फिर वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपको सीट कोई ना कोई कॉलेज में मिल जाएंगी। आपको शायद कॉलेज पसंद नहीं आएगा, लोकेशन पसंद नहीं आएगा, फिर आपको सेकंड काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे आप बहुत स्मार्टली कॉलेजेस सेलेक्ट करिए। और अगर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स है और उनका रुझान माइनॉरिटी कॉलेज के लिए है तो सबसे पहले टॉप ऑप्शंस में माइनॉरिटी कॉलेज रखिए। तेलंगाना में हैदराबाद में 2 माइनॉरिटी कॉलेजेस है, खम्मम में 1 माइनॉरिटी कॉलेज है। ठीक है, तो अगर आपका रुझान है कि मैं माइनॉरिटी कॉलेज में पढ़ना है तो माइनॉरिटी कॉलेज को टॉप प्रायोरिटी में रखिए। उसके बाद आप दूसरे कॉलेजेस सेलेक्ट करिए। आपका रैंक अगर 3YDC स्टूडेंट्स है जिनका रैंक 3000 के ऊपर है तो मेरी एक पर्सनल सजेशन ये है कि आप बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस सेलेक्ट करिए। जितने कॉलेजेस इन एंड अराउंड हैदराबाद में सारे कॉलेजेस सेलेक्ट करिए जिसका रैंक 3000 के ऊपर है, अप टू लास्ट रैंक। जिसका रैंक 3000 के अंडर है उनको शायद 2-3 कॉलेजेस में भी जो भी सेलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह उसमें सीट मिल जाएंगी। और अगर कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ में पढ़ना चाह रहे हैं तो अपना फर्स्ट ऑप्शन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ रखिए। कोई अगर PG कॉलेज बशीरबाग में पढ़ना चाह रहे हैं 5IDC स्टूडेंट्स तो अपना फर्स्ट ऑप्शन उसी में रखिए। ये आप जब ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको सीट अलॉट होंगी। आपने जो प्रेफरेंस दिया है उसी हिसाब से सीट अलॉट हो जाएंगी। अब आपके प्रिफर्ड कॉलेज में आपकी सीट आ गई, आपको इमीडिएटली सीट को कंफर्म करना है। एक ग्रीन डिपॉजिट होता है, ग्रीन फीस होती है, वो पे करना है। अगर आप लोग इनकम के लिए एलिजिबल है तो आपको 0 फीस आ जाएंगी। अगर आप इनकम के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपको फुल फीस एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट आपको फुल फीस पे करना है। ये याद रखिए, अगर आप फीस रिम्बर्समेंट के लिए एलिजिबल नहीं हैं
तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट आपको फुल फीस ऑनलाइन में ही पे करना है। फुल फीस ऑनलाइन में पे करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा, गो टू योर अलॉटेड कॉलेज विथ ऑल योर ओरिजिनल्स। अपने सारे ओरिजिनल्स आपको वेरिफिकेशन वहीं कॉलेज में ही होंगे। आपके सारे कॉलेज वाले ओरिजिनल्स लेंगे, सारे वेरीफाई करेंगे और आपको वहाँ पे कॉलेज में अपना अलॉटमेंट सर्टिफिकेट सबमिट करना है। अगर आपने अपना अलॉटमेंट वहाँ सबमिट नहीं किया तो आपकी फ़ीस और आपकी सीट दोनों लॉस। तो ये चीज़ याद रखिए कि आपको जैसा सीट अलॉट हो जाइए, आपके अलॉटेड कॉलेज में जाइए, रिपोर्ट करिए, उनको अपने ओरिजिनल्स सबमिट करिए और अपना अलॉटमेंट लेटर दीजिए। उनका कंफर्मेशन वहाँ से लेंगे, आपकी सीट कंफर्म हो गई। भाई एनी चीज़ आपको अपना कॉलेज पसंद नहीं है ड्यू टू एनी रीज़न, पर्सनल रीज़न, सबके अपने अपने पर्सनल रीजन हो सकते हैं, सब कॉलेजेस तो एक ही जैसे है। आपको अपना कॉलेज पसंद नहीं है, आपके पास सेकेंड फेज़ का ऑप्शन है। सेकेंड फेज़ आपको बहुत स्मार्टली मूव करना है अगर आपको ऑलरेडी सीट आ चुकी है। फिर वही मल्टीपल कॉलेजेस अपलोड नहीं करना है। यहाँ पे आपको ये चीज़ करना है कि आपको जो प्रिफर्ड कॉलेज है वही अपलोड करिए सेकेंड फेज़ में। और जिसको फर्स्ट फेज़ में सीट नहीं आती उनके लिए सेकेंड फेज़ में तो सारे ऑप्शंस डाल लिए लोग। तो ये एक फ़र्क रहेगा। सेकेंड फेज़ में जो जाएंगे, काउंसलिंग के सेकेंड फेज़ में जो जाएंगे, अगर किसी को सीट नहीं आई है तो लोग सेकेंड फेज़ ऑफ काउंसलिंग में सारे ऑप्शंस अपलोड करिए और जिसको सीट आ चुकी है, क्योंकि जो आपको सीट आ गई वो आपकी सीट रिजर्व हो गई, आपने उसके लिए अलॉटमेंट लेटर सबमिट कर दिया, आपकी सीट रिजर्व हो गई। ये सीट जब भी रिजर्व होगी जब आप अलॉटमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपना अलॉटमेंट लेटर कॉलेज में सबमिट कर रहे हैं, आपकी सीट रिजर्व हो गई है। अब आप बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं, बेटरमेंट में जो भी कॉलेज डाल रहे हैं अगर वहाँ सीट नहीं है तो आपकी ये सीट तो फिक्स्ड है। अगर आपको सीट ही नहीं आती है फर्स्ट फेज़ में तो वहाँ पे आपको सेकेंड फेज़ में मैक्सिमम ऑप्शंस ट्राई करना है, क्योंकि सेकेंड फेज़ में बहुत लिमिटेड सीट्स होते हैं। ठीक है। सेकेंड फेज़ के बाद होती है फाइनल फेज़, जिसको बोलते हैं स्पॉट एडमिशन। स्पॉट एडमिशन क्या होता है कि जो फर्स्ट फेज़ ऑफ काउंसलिंग हो गई, सेकेंड फेज़ ऑफ काउंसलिंग हो गई, इसमें सीट्स बच गए, बचने के बाद स्पॉट एडमिशन होता है। स्पॉट एडमिशन हर कॉलेज के इंडिविजुअल मेरिट के बेसिस पे स्पॉट एडमिशन होता है। आपको अपना प्रेफरेंसेस कॉलेज का, इंडिविजुअल एक एक कॉलेज का प्रेफरेंस के हिसाब से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है स्पॉट के लिए। और जब आप स्पॉट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपको जिस दिन भी स्पॉट का नोटिफिकेशन, पर्टिकुलर कॉलेज का, हर कॉलेज का स्पॉट का नोटिफिकेशन अलग अलग दिन होता है, आपको स्पॉट के नोटिफिकेशन में जाना है और उसी दिन सेम डे स्पॉट सीट अलॉट होंगी वो। तो ये रहेगा स्पॉट के लिए। इसके अलावा जो कैटेगरी है मैनेजमेंट कोटा, 20% सीट्स रहेंगे। ये कंप्लीटली कॉलेज के मैनेजमेंट के हाथ में सीट्स हैं। इसके लिए आप लोग कॉलेज में वॉक इन जाइए, मैनेजमेंट से मिलिए, उनसे फीस डिसाइड करिए, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इसमें कन्वीनर लॉसेट का कोई रोल नहीं है। इसमें आप फीस रिम्बर्समेंट के एलिजिबल नहीं है। इसमें कोई ST SC BC का रिजर्वेशन नहीं होता है, कोई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होता है, कोई माइनॉरिटी एक्सक्लूसिव कोटा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आप और आपके कॉलेज का मैनेजमेंट और आपकी फीस, 3 चीज़ें इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। अगर किसी को लॉ सेट में रैंक नहीं आया तो वो लोग मैनेजमेंट कोटा सीट प्रेफर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ब्रीफ लॉ सेट की काउंसलिंग के लिए। तो आई गेस इसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो है इंशाल्लाह यहाँ पे जितने लोग यहाँ इस वक्त मौजूद है, सबको मैं आने वाले 3 महीने में कोई ना कोई लॉ कॉलेज में इंशाल्लाह एडमिशन लेते हुए उम्मीद करूँगा कि लॉ कॉलेज में जाएंगे और 3 साल या 5 साल के बाद अपनी लॉ की डिग्री हाथ में लेके प्रैक्टिस में आएंगे इंशाल्लाह। इसमें मज़ीद किसी को कोई डाउट है? जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद अंसार, मैं हाफिज़ हूँ, आलिम हूँ और मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि लॉ करूँ। तो बस मेरे पास 10th की सर्टिफिकेट है, वो भी टॉस से, और इंटर डिसकंटिन्यू है, एक पेपर रुके हुआ है। अलबत्ता मेरा मास्टर है अरबिक से, तो मैं कामयाब हूँ उसमें। तो क्या मैं इससे, कैसा मेरा प्रोसेस रहेगा, कैसा? माशाल्लाह भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है
कि भाई ने 10th किया है ओपन स्कूल से, उसके बाद इंटरमीडिएट आप ओपन स्कूल से कर रहे थे, रेगुलर कर रहे थे? ओपन स्कूल से कर रहे थे, एक बैकलॉग आ गया। अब भाई की जो है इसमें साइमल्टेनियसली सनद है अरबिक में मास्टर्स है मौलाना आज़ाद ने। उससे पुरानी सनद क्या है आपकी? मौलाना आज़ाद में मास्टर्स करने से पहले क्या किया था आपने? नहीं, क्या किसके बेसिस पे मास्टर्स किया आपने? आलिमियत कहाँ से है आपकी? जामियतुल फलाह की आलिमियत है। देखिए होता क्या है कि आपकी जामियतुल फलाह की जो आलिमियत है उसको मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी ने तो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन क्योंकि ये तो सारे प्रोग्राम उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंडर में है, मौलाना आज़ाद में भी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है। अभी इस वक्त हम मौलाना आज़ाद का जिक्र नहीं कर रहे हैं, अभी इस वक्त सिर्फ हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी और उसके कॉलेजेस का जिक्र कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा क्राइटेरिया, आपको मौलाना आज़ाद ने तो आपको ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल दिया, आपको मास्टर्स में एडमिशन दे दिया। अब यहाँ पे आपको अपनी आलिमियत की डिग्री को इवैल्यूएट कराना पड़ेगा उस्मानिया यूनिवर्सिटी में। अगर उसकी आलिमियत की डिग्री को वो लोग एलिजिबल देते हैं, इसके लिए आपको उस्मानिया यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक 2nd फ्लोर एलिजिबिलिटी सेक्शन जाना है। यहाँ जाके आपको अपनी डिग्री को इक्वलेंसी सर्टिफिकेट इशू करवाना है। इसकी अगर आपको उस्मानिया यूनिवर्सिटी में इक्वलेंसी सर्टिफिकेट मिल जाती है तो आप 3YDC के लिए एलिजिबल है, 3 इयर्स लॉ कोर्स के लिए। नहीं, अगर वो लोग नहीं दे रहे हैं तो फिर आप जो इंटरमीडिएट ओपन स्कूल से कर रहे हैं वो कंप्लीट करिए। इंशाल्लाह अक्टूबर में एग्जामिनेशन है उसके। दशहरा वेकेशंस में ओपन स्कूल के सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस होते हैं, आप अपना सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन दीजिए। अगर आपका नवंबर एंड तक रिजल्ट आ जाता है इंशाल्लाह, तो हो सकता कि आपको स्पॉट कैटेगरी में लेफ्ट ओवर सीट्स या मैनेजमेंट कोटे में कोई सीट मिल जाए, नहीं तो फिर इंशाल्लाह अगले साल के लिए कोशिश करिए। आपके साथ एक दूसरी एक प्रॉब्लम ये है कि आपने अपना स्कूलिंग ओपन स्कूल से किया, 10th, इंटरमीडिएट भी ओपन स्कूल से किया। इसके बेसिस पे आप लॉ पढ़ने के लिए तो एलिजिबल है, आप लॉयर तो बन जाएंगे, लेकिन एडवोकेट बनना थोड़ा मुश्किल है। फ़र्क ये है लॉयर और एडवोकेट में कि जिसके पास लॉ की तालीम होती है वो लॉयर है, और जिसके पास प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है वो एडवोकेट है। तो प्रैक्टिस करने का लाइसेंस के लिए आपको बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना अप्रोच होना पड़ेगा। इस वक्त बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना में एक हाई कोर्ट की रूलिंग है कि लॉ प्रैक्टिस के लिए आपका प्रीवियस एजुकेशन रेगुलर में ही होना। वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है अभी। इंशाल्लाह शायद आप लोग जब तक लॉ कंप्लीट कर लेंगे, जब तक हो सकता है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट उसको एलिजिबल दे देगा, तो आप लोग भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो उम्मीद मत हारिए, इंशाल्लाह 5 साल में कुछ नहीं हुआ तो आप खुद अपने लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़िए। नहीं, मौलाना आज़ाद से प्रोसीड करने के बाद भी जो है इनके लिए मुश्किलात है। वो रेगुलर एजुकेशन को बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना मानना फिर तो ऐसे कोई स्टूडेंट्स जो टॉस से एसएससी की है, टॉस से इंटरमीडिएट की है, या डिग्री डिस्टेंस एजुकेशन में की है, ऑनलाइन में की है, नाउम्मीद मत होइए, आइए लीगल प्रोफेशन में लॉ करिए। अभी एलिजिबल नहीं है आप लोग लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में जैसा सुप्रीम कोर्ट इसको क्लियर कर देंगे, और मेरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको क्लियर कर देंगे, क्योंकि आर्टिकल 21 का स्ट्रिक्ट वायलेशन है। और यूजीसी खुद बोली हुई है कि जो है द स्टूडेंट कंप्लीटिंग एजुकेशन इन ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन इज ऑन द सेम पार विद दैट ऑफ अ कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड इज़ रेगुलर एजुकेशन। तो जब एजुकेशन में जो अथॉरिटी है एजुकेशन की, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उन लोग इसमें डिस्क्रिमिनेंसी नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी नहीं करना चाहिए। तो जब तक इंशाल्लाह आप लोग एलिजिबल रहेंगे तो आप लोग उम्मीद मत हारिए, उम्मीद का दामन पकड़े रहिए। आइए, बहुत नोबल प्रोफेशन है ये, और ये प्रोफेशन में सीखने का बहुत है। देखिए 3 साल लॉ पढ़ के आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इनरोल होकर एडवोकेट तो बन जाएंगे, लेकिन मैं फिर वही बोलता हूँ, एडवोकेट एक स्टेप है आपका, लॉ पास कर लिया आप लॉयर हो गए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इनरोल हो गए, एडवोकेट हो गए। एडवोकेट तो बन जाते लेकिन लॉयर बनना आसान नहीं है। अब आप बोलेंगे मैं लॉ पास कर लिया, मैं लॉयर हो गया,
मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एनरोलमेंट करा लिया, बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना में एनरोल करा लिया, एडवोकेट हो गया, फिर भी लॉयर बनना क्यों आसान नहीं है किसके पास का जवाब? कोई है इसका जवाब दे सकते? नहीं, एडवोकेट हो गए आप। मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, आप 3 साल लॉ पढ़े, आप लॉयर बन गए, आप बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना में एनरोल कर लिए, एएवी का एग्ज़ाम लिख लिया, आप एडवोकेट हो गए। आप लॉ पढ़ लिए, लॉयर कहलाए गए, आप उसके बाद जो है इनरोलमेंट करा लिए, एडवोकेट बन चुके हैं। एडवोकेट बनना आसान है, लॉयर बनना मुश्किल है। क्यों? इट इज़ वेरी इजी टू बिकम एन एडवोकेट, इट इज़ वेरी टफ टू बिकम ए लॉयर। है कुछ का रीजनिंग इसके पीछे क्या है? कुछ रीजनिंग, कुछ लॉजिक होगा। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आपको इसके पीछे की लॉजिक ये है कि आप लॉयर कब कहलाए जाते हैं? जब आपने लॉ स्टडी किया है, डिग्री कंप्लीट किया है। ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया। मैं एमबीबीएस मैंने कर लिया है, मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री आ गई, ये टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया। आपने लॉ की पढ़ाई पढ़ ली, कॉलेज की, आपके पास लॉ की डिग्री आ गई, आप लॉयर बन गए। लेकिन प्रैक्टिकली आप लॉयर बने? आप लॉयर कब बनेंगे? आपका लर्निंग प्रेजेंट कंटिन्यूस लर्निंग है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस लर्निंग है। लर्निंग आपके जिंदगी भर का हिस्सा है। तो इट इज़ वेरी टफ टू बिकम ए लॉयर, इट इज़ वेरी इजी टू बिकम एन एडवोकेट। आप एडवोकेट बन के अपने आप को अगर लीगल स्टडीज़ में अपडेट नहीं कर रहे तो यू विल नेवर बिकम ए लॉयर, यू विल ऑलवेज बी एन एडवोकेट। और एडवोकेट बनने के बाद ही लॉयर का स्टेप शुरू होता है। पहला स्टेप एज ए लॉयर वहीं शुरू होता है कि आपको डे टू डे बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के साइटेशंस, पार्लियामेंट के लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, ये सब आपको अपडेट रहना है। इसके बाद आपके पास कोई भी सब्जेक्ट का केस आ सकता, कोई भी सब्जेक्ट का केस आ सकता। बीइंग एन एडवोकेट आप कोई भी सब्जेक्ट का केस ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सब्जेक्ट नॉलेज है तो ही आप लॉयर कहलाएंगे। कुछ भी सब्जेक्ट्स होता था, एक मेडिकल नेग्लिजेंस का आपके पास केस आ गया, अब आप मेडिकल नेग्लिजेंस के प्रूफ करने के लिए आपको मेडिकल नॉलेज भी हासिल करना है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। आप इसमें बोल सकते हैं कि आपको जैक ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स बनना है। आपको हर सब्जेक्ट्स के कम से कम ओवरव्यू मालूम रहना पड़ेगा, तो ही आप लॉयर बनेंगे। एडवोकेट तो आप बन गए, आपके पास टैग आ गया एडवोकेट का, आप एडवोकेट बन गए। तो ये याद रखिए कि एडवोकेट बनने के बाद लॉयर का सफ़र शुरू होता है। अब वो सफ़र आप उर्दू का सफ़र रख रहे हैं, इंग्लिश का सफ़र रख रहे हैं, आपके ऊपर है। तो अगर आपकी लर्निंग आसान रही तो आपका सफ़र आसान रहेगा, अगर आपकी लर्निंग नहीं रही तो फिर वो सफ़र बन जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिए। हैदराबाद में कितने कॉलेजेस है और फीस स्ट्रक्चर क्या है, और अगर कोई एलिजिबल पास आउट क्रैक आउट नहीं करे, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो व्हाट दे कैन। भाई ने एक सवाल किया है कि हैदराबाद में कॉलेजेस कितने हैं। हैदराबाद में जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है वो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, जिसमें 3YDC और 5YDC यूनिवर्सिटी कैंपस में है। इसके अलावा पीजी कॉलेज ऑफ लॉ जिसमें 5YDC है, 3YDC नहीं है। इसके अलावा उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंडर में काफ़ी खानगी कॉलेजेस है, नियर अबाउट 22 खानगी कॉलेजेस है। खानगी कॉलेजेस की फ़ीस 20,000 से 45,000 के बीच में है। वही है कि आप अगर फीस रिम्बर्समेंट स्कीम के लिए एलिजिबल है तो फिर आपको ज़ीरो फीस हो जाएंगी। आप एलिजिबल नहीं है फीस रिम्बर्समेंट स्कीम के लिए तो डिपेंडिंग ऑन कॉलेज टू कॉलेज आपकी फ़ीस डिसाइड हो रही है। 20,000 से 45,000 के बीच के ब्रैकेट की फ़ीस रहेंगी। नेक्स्ट है कि किसी स्टूडेंट जो अगर लॉ सेट क्वालिफाई नहीं किए या लॉ सेट क्वालिफाई करने के बाद उनको सीट नहीं है, उस सूरत में वो लोग मैनेजमेंट कोटा सीट ले सकते हैं। अब मैनेजमेंट कोटा की अगेन
कंडीशन यही है कि डिमांड एंड सप्लाई कितनी है, क्योंकि है सिर्फ 20% सीट्स। आपको यहाँ 80% में नहीं मिला तो आप 20% में जाना है, तो 20% में लाजिम सी बात है डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। और एक सिंपल इकोनॉमिक्स है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो उसके लिए प्राइस क्या रहेगा, तो प्राइस हायर इतना रहेगा कि जो मिनिमम फीस है 20 to 45,000, इसके ऊपर इट कैन गो टू अप टू 60, 70, 80,000, 1 लाख रुपीज़ पर एनम, 1.5 लाख रुपीज़ पर एनम, डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई। तो ये रहेगा खानगी कॉलेजेस का मैनेजमेंट कोटा सीट। आप फाइनेंशियली इनफ है तो आप बिल्कुल अपने रेस्पेक्टिव प्राइवेट कॉलेज में जाइए, फीस की बात करिए और अपना सीट कंफर्म कराइए। नहीं तो फिर मेरा मशवरा वही है, डोंट वेस्ट योर पेरेंट्स मनी, इट इज़ एन हार्ड अर्न मनी, डोंट वेस्ट दैट मनी। फिर अगले साल लॉ सेट लिखिए, अगले साल फिर से इंशाअल्लाह ताला रैंक लाइए। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। फ़ायदा एक ये रहेगा कि आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा ये रहेगा कि आप जब फिर से लॉ सेट की तैयारी करेंगे तो फिर से एक स्टेप टूवर्ड्स लॉयर बनेंगे आप। आपका सब्जेक्ट फिर इन्हांस होगा, आप पढ़ेंगे तो आपका सब्जेक्ट इन्हांस होगा, तो आपके लिए आने वाले 5 साल आसान रहेंगे। नहीं आप बोल रहे हैं कि आई लूज़ माई इंटरेस्ट इनटू द सब्जेक्ट और मुझे इसी साल लेना है, तो अप टू यू। मैनेजमेंट कोटा सीट्स आर ऑलवेज ओपन, colleges are welcoming students to come down and take the management quota seat. It is how deep a pocket you have. देखिए होता क्या है कि स्कैन में और फोटोज पिक्चर्स फ़ोन से पिक्चर्स लेने में फ़र्क क्या होता है कि स्कैन जो होती है वो प्रॉपर आपका डॉक्यूमेंट को आपने स्कैन किया, क्लियर डॉक्यूमेंट आ गया। आप जब स्कैन अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ एक फिजिकल पर्सन है जो उसको रीड कर रहा है और आपको एलिजिबल है या नहीं है बता रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट उसको क्लियरली समझ में आ रहा है। आपने फ़ोन से पिक्चर खींचा, आपने फ़ोन से पिक्चर कैसा खींचा मुझे नहीं मालूम है। आप फोटो ब्लर भी हो सकती है, फोटो इम्प्रॉपर भी आ सकती, उसमें जो जो कंटेंट्स है वो प्रॉपर विजिबल नहीं हो सकते, तो फिर आपको इनएलिजिबल हो जाएंगे एक छोटी सी गलती की वजह से। आप इनकम सर्टिफिकेट ऑन एंड आफ्टर 1 जून 2026, इनकम सर्टिफिकेट और EWS अगर किसी को है तो लेटेस्ट लगाना है। कैश सर्टिफिकेट अगर आप लगाएंगे तो तेलंगाना फॉर्मेशन के बाद 2 जून 2014 के बाद से का कोई भी कैश सर्टिफिकेट लगा सकते हैं आप। और कोई मजीद सवाल? अगेन मैं वो बोलूंगा, देखिए सारे कॉलेजेस एक ही है, 19, 20, 21 सब एक ही है। अब आप अपनी तरफ से कोई प्रिफर्ड कॉलेजेस रखिए तो उसको फर्स्ट पे नंबर पे रखिए। अगर आप माइनॉरिटीज़ है तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि माइनॉरिटीज़ कॉलेज को 1, 2 और 3 की लिस्ट में रखिए। अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ में पढ़ना चाह रहे हैं तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ लॉ रखिए, उसके बाद माइनॉरिटी कॉलेजेस रखिए, उसके बाद आप कोई भी कॉलेज रखिए, सब एक ही है। इनफैक्ट अगर आपका रैंक काफ़ी ऊंचा है, समझिए 3YDC में आपका रैंक 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 का रैंक है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि तेलंगाना के जितने कॉलेजेस सब कॉलेजेस रखिए, इंशाल्लाह कोई ना कोई कॉलेज में सीट मिल जाती। और मेरे को उम्मीद है कि आप वो कॉलेज से लॉ कंप्लीट करके निकल जाते। इर्रेस्पेक्टिव आपकी जो भी प्रायोरिटीज़ चल रही हैं, आपका जॉब चल रहा, आपका कुछ और चल रहा, कोई भी कॉलेज तेलंगाना में मिल रहा ले लीजिए। वेब काउंसलिंग के टाइम पे जो गलती करते स्टूडेंट्स, प्राइमरी गलती ये रहती है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्कैन करके नहीं अपलोड करते, ठीक है। सेकंड गलती ये करते कि जो है अपना परसेंटेज चेक नहीं करते। 45% मिनिमम रहना ज़रूरी है, वो परसेंटेज चेक नहीं करते, अपलोड कर देते, इनएलिजिबल हो जाते। थर्ड क्या करते, बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते, जिसकी वजह से आप लोकल प्रूफ नहीं कर सकते अपने आप को। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 5 टिल या इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की अपनी बोनाफाइड सर्टिफिकेट की कॉपी अपलोड करिए। फोर्थ मिस्टेक ये करते कि जो है अपना कैस्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते, ST, SC, BC ये मिस कर देते अपलोड करना, तो उससे आपको कैस्ट रिजर्वेशन नहीं मिलता कॉलेजेस में। एक बात याद रखें, माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए कास्ट रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, ना EWS की, ना ST, SC, BC, माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए ज़रूरत नहीं है इसकी। इसके बाद ये गलती करते कि अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना भूल जाते हैं।
या इनकम सर्टिफिकेट, तो आप फीस रिइंबर्समेंट के लिए एलिजिबल नहीं रहते। एक इसमें एक मशवरा मैं दूंगा आगे कि अगर आप फॉर द हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर आप नहीं कर सके, आपको सीट भी अलॉट हो गई, सीट अलॉट होने के बाद भी 3 दिन का टाइम रहता, उस दरमियान में भी जाके आप सिर्फ अपनी इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करके अपनी फीस ज़ीरो करा सकते अगर आप एलिजिबल है तो। अगर किसी के पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिल रही तो पैनिक मत होइए, काउंसलिंग मत छोड़िए, काउंसलिंग अटेंड करिए। लॉ कॉलेज में आपको सीट अलॉट होने के बाद भी 3 दिन का टाइम मिलता है, उस 3 दिन के दरमियान में आप अपनी इनकम सर्टिफिकेट हासिल करिए, हासिल करके जाके कन्वीनर लॉ सेट में सबमिट करिए। इंशाल्लाह आपको ज़ीरो फीस का आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। उसके बाद गलती ये करते कि स्टूडेंट्स अपना माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते, भूल जाते हैं माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, ये समझते कि हम BCE सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए तो वही माइनॉरिटी सर्टिफिकेट हो गया। BCE सर्टिफिकेट इज ओनली फॉर द कास्ट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अलग से होता है। उसके लिए अपने स्टूडेंट को अपने SSC के TC की फ्रंट साइड की ज़ेरॉक्स सबमिट करना है, या स्कूल से माइनॉरिटी लेटर सबमिट करना है, या आपको मस्जिद का लेटर सबमिट करना है। तो माइनॉरिटी कॉलेज में जब आप माइनॉरिटी सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे तो ही आप माइनॉरिटी कॉलेज में एलिजिबल है। ये चीज़ याद रखिए, आपके माइनॉरिटी कॉलेज में एलिजिबल होने के लिए आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो यही बेसिक मिस्टेक्स करते लोग डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के टाइम पे। उसके बाद जो वेब ऑप्शन सबमिट करना रहता उस टाइम पे मिस्टेक ये करते कि रैंडम ही कॉलेज डाल देते, ये 1 2 3 4 रैंडम ऑप्शंस डाल देते, अरे कहीं में भी मिल जाता। बल्कि ये गलती मत करिए, रैंडम ऑप्शंस मत डालिए। स्मार्टली अपने कॉलेज के कोड चेक करिए, कॉलेज का नाम चेक करिए, कॉलेज के कोड चेक करिए, कॉलेज में कितने सीट्स है चेक करिए, और उतने सीट्स में आपको सीट आएंगी नहीं आएंगी वो चेक करिए। वो चेक करके अपने प्रेफरेंसेस दीजिए। और स्टूडेंट्स गलती ये करते 2 3 4 प्रेफरेंसेस डालते, अनलिमिटेड प्रेफरेंस डाल सकते हैं आप, जितने कॉलेजेस है पूरे प्रेफरेंस डाल सकते हैं आप। तो ये मिस्टेक मत करिए कि 2 3 4 5 अरे मैं 10 डाल दिया, 10 से ज़्यादा एलिजिबल नहीं होगा, ये गलती मत करिए, आप पूरे प्रेफरेंसेस डालिए आप। तो ये कुछ बच्चे सिंपल से मिस्टेक्स करते, ये मिस्टेक्स मत दोहराइए। और अगर किसी वजह से जो है आपको फर्स्ट फेज में सीट नहीं आई, डिसहार्टन मत होइए, सेकंड फेज में इंशाल्लाह सीट मिल जाएंगी, उम्मीद है कि सीट मिल जाएंगी। तो ये कुछ सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल इंस्ट्रक्शंस है। और कोई मज़ीद आप लोगों को डाउट्स? कॉलेज का टाइमिंग यही रहेंगे आपको 9:30 से 3:30। हर लॉ कॉलेज का टाइमिंग सही है 9:30 to 3:30। और कुछ? देखिए लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना काफ़ी आसान है। लॉ सेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, लॉ कॉलेज में एडमिशन हो गया। लॉ कॉलेज में एडमिशन होने के बाद कॉलेज 9 से 3:30 कॉलेज रहता, लेकिन असल लर्निंग कॉलेज के बाद होती। जो वक्त आप अपना दोस्तों के साथ चबूतरों पे गुजार रहे हैं, या अपना इंस्टाग्राम पे गुजार रहे हैं, अपना स्नैपचैट पे गुजार रहे हैं, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे गुजार रहे हैं, वो वक्त अपना कोर्ट में गुजारिए, वो वक्त अपना लॉ जर्नल्स पढ़ने में गुजारिए। सोशल मीडिया यूज़ करिए, लेटेस्ट लॉ अमेंडमेंट्स देखिए। काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट्स है जो आपको डे टू डे बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स बताते हैं। लाइव लॉ है, बार एंड बेंच है, इनको सोशल मीडिया पे इनसे रास्ता रखिए ताकि आपकी लीगल नॉलेज इन्हांस हो। मैं फिर वही बोलूँगा, लॉयर टू एडवोकेट, एडवोकेट टू लॉयर, ये एक सर्कल है, आपको आँख का दरिया है, डूब के जाना है। ठीक है? और कोई किसी को कुछ डाउट? चलिए फिर हम मेरा सेशन कंक्लूड करता हूँ। इसके बाद का सेशन जो है एडवोकेट निज़ाम अली खान साहब का रहेगा। इंशाल्लाह उन्होंने मज़ीद आगे इसके ऊपर और आपको रोशनी डालेंगे।